Hello students, we are doing miscellaneous exercise and it is about to end. So let's start question number 28. Like the previous question, Shamshad Ali buys a scooter for rupees 22,000. He pays 4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? So he buys a scooter for 22,000 and he paid 4,000 as cash and unpaid amount is 18,000. Now he paid this amount in form of installments with 10% interest on unpaid amount. So total amount which Shamshad Ali borrowed is 22,000 and he paid 4,000 rupees. Total unpaid amount is 18,000. Now he paid 10% of 10% interest on unpaid amount. So first he paid 10% of 18,000 with 1,000 rupees. तो 18,000 बोरो किए थे उसमें से 1,000 पे कर दिए तो now 17,000 is unpaid amount. So next time he'll pay 10% of 17,000 with 1,000 rupees. So now 16,000 is left. So 10% of 16,000. And finally one day he'll pay 10% of last installment, that is 1,000 rupees. So in this way we'll pay 10% of these amounts. So we can calculate the sum of all these amount and we can calculate 10% of their sum. So we can observe this is an AP. Whose first term is 1,000, common difference is 1,000, last term is 18,000. So we can find n. So n is 18. Now let's find the sum of n terms of this AP. So Sn is n upon 2 a plus an. So n is 18, a is 1,000, an is 18,000. So this is the sum of the amounts. Now total interest is 10% of this amount. Total interest paid by Shamshad Ali is 10% of
1,71,000, which is 17,100. So this is the total interest paid. Okay, so total cost of scooter, तो उसने लिया था 22,000 का, 4,000 पहले दे दिए, 1,000 करके उसने 18 टाइम में 18,000 को दे दिए, यानी 22,000 तो उसने अलग दे दिए, और इतना रुपया उसने इंटरेस्ट का दे दिया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज़ 22,000 तो वो दिए, 4,000 कैश और 18,000 इंस्टॉलमेंट में, और इंटरेस्ट दिया 17,100। तो उसको 39,100 का वो स्कूटर पड़ा। नाउ इन 29th क्वेश्चन, a person writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly. Assuming that the chain is not broken and that it costs 50 paise to mail one letter, then find the amount spent on the postage when 8 set of letter is mailed. तो उसने 4 फ्रेंड्स को एक एक लेटर दिया और उन चारों से कहा कि तुम भी अपने 4 फ्रेंड को ये मेल कर दो, ठीक है। और उसने कहा इस तरह से 8 टाइम जब हो जाएगा तब टोटल कॉस्ट बताएंगे पोस्टेज जो है उसकी, और एक मेल में 50 पैसे लगेंगे, ठीक है। तो देखो उसने, मान लेते हैं ए जो था ओरिजिनली, ही सेंड द लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड बी सी डी ई, तो ए ने बी को एक, सी को एक, डी को एक और ई को एक दे दिया लेटर, और कहा कि तुम भी इसको कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को भेजो 4 को। तो फिर बी ने अपने 4 फ्रेंड को भेजा, ठीक है ना, फिर सी ने अपने 4 फ्रेंड को, फिर डी ने अपने 4 फ्रेंड को, फिर ई ने अपने 4 फ्रेंड को। तो ए ने तो 4 जनों को भेजा था, ये देखो, और फिर इसने 4 4 4 4, तो इस इन फर्स्ट जो उसकी चेन थी उसमें 16 लेटर्स बटे, ठीक है ना। पहली टाइम तो 4 लेटर बटे, फिर उन चारों ने जब 4 भेजे तो 16 लेटर्स मेल हुए। अब ये जो 16 होंगे पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 पर्सन भी फिर 4 को भेजेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 16 4 जा 64 लेटर्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस बन रहा है कि पहली बार 4 लेटर्स, सेकंड टाइम 16 लेटर्स, थर्ड टाइम 64 लेटर्स एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि अगर 8th टाइम हम देखें तो सो इफ़ n इज़ 8 देन वी नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दीज लेटर्स, और जो उनका टोटल सम होगा उसको हम फिर 50 पैसे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें निकालना है कि 8 बार अगर इस तरह की चेन क्रिएट हो तो टोटल कितने मेल हुए। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज़ अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड कॉमन रेशो इज़ 4 एंड n इज़ 8, सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स is sum of 8 term of this GP, which is A. So A is 4, R is 4, four is to power 8, sixteen, 256, 256, okay।
तो टोटल नंबर ऑफ मेल इतने हुए हैं. नाउ कॉस्ट ऑफ वन मेल is 50 paise, that is 1/2 rupees. So therefore total cost of mail is 87380 into half. So 43,690 rupees will be the cost of mailing all those letters. Now in 30th question, a man deposited rupees 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. तो उसने 10,000 रुपये जमा कराए और 5% उसको सिंपल इंटरेस्ट उसका मिलेगा. तो फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर. तो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों, हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है. तो उसने जो बोरो किए, जो दिए, बैंक में डिपॉजिट कराए, वो है 10,000 रुपीज़. ठीक है, और उसको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल 5%, 500 रुपये. ठीक है, अब अगर ये होता कंपाउंड इंटरेस्ट तो 10,000 में फिर 500 ऐड होता. ठीक है, तो ये एक साल के बाद का अमाउंट होता और दूसरे साल का इंटरेस्ट फिर हमें 10,500 का देना पड़ता. यानी आपका ये जो 500 रुपया इंटरेस्ट हुआ, इसको ऐड करके जो एक साल बाद का होगा अमाउंट, उस पर आपको देना पड़ेगा 5% का. बट हियर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड using the formula for simple interest. So therefore the interest for every year will be the same. So we have 10,000 first term, and then 10,500, then 11,000. So find the amount in 15th year. So if n is 15 and n is 20, then what will be the total amount? तो हमने अमाउंट की AP बना ली है. This is an AP whose first term is 10,000, whose common difference is 500, and n is 15. So sum of 15 term an will be a plus and minus 1 into d. So a15 will be a plus 15 minus 1 into d. A is 10,000, 15 minus 1 is 14, d is 500. So after 15 years, the total amount will be 17,000. Similarly, we can calculate the total amount after 20 years. Now in 31st question, a manufacturer reckons that the value of a machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. तो हर साल मशीन की कॉस्ट 20% कम हो जाती है. So 20% means 20/100, that is 1/5. तो जो उसकी कॉस्ट है उसमें से 1/5 कम हो जाएगी. तो कोई सी भी चीज़ जो 1/5 लेस हो जाती है तो इट बिकम्स 4/5. तो इसका मतलब है आफ्टर एवरी ईयर द कॉस्ट ऑफ मशीन विल बिकम 4/5 ऑफ प्रीवियस ईयर. देयरफॉर after 1 year the cost of machine will become 4/5 of its original value. After 2 years it will become 4/5 of value
after 1 year, and after 3 year it will become, यानी पिछले साल की जितनी थी उसका 4.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन. सो देयरफॉर आफ्टर 5 year, after 5 year the cost of machine will be 15,625 to 4.5 raised to the power. So let's simplify it. Five one two zero. Okay. Now in question number 32, 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. यानी 150 मजदूरों को काम दिया और उनको बताया कि इतने दिन में आपको ये कंप्लीट करना है, लेकिन 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे. लेकिन दूसरे दिन 4 वर्कर चले गए काम छोड़कर. और फिर ऐसा ही तीसरे दिन भी हुआ, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन. और ये 4 जाने का सिलसिला जारी रहा. तो इसलिए जो काम सर्टेन नंबर ऑफ डेज़ में होना था, अब उसमें 8 मोर डेज़ लग गए उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि अब मैन पावर रोज़ कम होता जा रहा था. सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज़. वो कह रहा है बताओ कितने दिन के लिए इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीट, कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ. ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट 150 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड to complete the job in X days. हम मान लेते हैं X days के लिए लगाया था उनको. तो रोज़ 150 वर्कर आते थे. पहले दिन 150, फिर दूसरे दिन 150, फिर तीसरे दिन 150. ये कहानी थी, ऐसा उसने सोचा था कॉन्ट्रैक्टर ने कि ऐसा होगा. तो यानी X डेज तक 150 रोज़ आते थे वर्कर. अगर मान लो 2 दिन 150 वर्कर आए तो पहले दिन 150, दूसरे दिन 150, यानी 300 वर्कर आए एक तरह से एक दिन में. ठीक है, तो इस तरह से हम मैन पावर निकालते हैं कि टोटल रिक्वायरमेंट क्या थी. ठीक है, इसका मतलब 150 उसने सब कैलकुलेट करके लगाया कि भाई 150 लोगों को एक्स दिन तक बुलाएंगे, काम हो जाएगा. इसका मतलब उस काम को कंप्लीट करने के लिए 150 इंटू एक्स लोगों की ज़रूरत थी. पहले दिन 150, दूसरे दिन 150. मान लो 150 वर्कर्स को उसने कहा 10 दिन में आना है और 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा. इसका मतलब वो काम 1500 लोगों का था अगर एक दिन में करवाते तो रोज़ 150 आ रहे हैं, 10 दिन में 1500 हो गए. तो इस तरह से अगर एक्स डेज तक 150 वर्कर्स आते तो 150 इंटू एक्स वर्कर्स का काम होता और इतने लोगों की ज़रूरत थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हुआ तो ये कि पहले दिन 150 आए और दूसरे दिन 150 माइनस 4 यानी 146 आए. फिर तीसरे दिन 146 माइनस 4 यानी 142 आए और ऐसा चला. सो फर्स्ट डे 150 वर्कर्स, सेकेंड डे 146, थर्ड डे 142. और बच्चों एक्स दिन आने थे, लेकिन जब 4 दिन लोग रोज़ कम होने लग गए तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा अब x+8 डेज तक वर्क करना पड़ेगा. तो यहाँ पर x+8 डेज तक वर्क हुआ. तो हम देखते हैं कि भाई 150 पहले दिन 146, दूसरे दिन तीसरे दिन 142, ऐसा 8 दिन ज़्यादा
उसने टाइम दिया कि तब जाकर उतने वर्कर होंगे जिससे वो काम कंप्लीट होगा जो 150 वर्कर से एक्स डेज में ही हो जाता था। तो अब हमें निकालना है कि ये कितने वर्कर्स हैं। तो हम इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस ए पी। हियर ए इज़ 150 and d is -4 and n is x plus 8. So Sn is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. So n is x plus 8, a is 150 and d is -4. तो बच्चों इतने वर्कर्स थे वो जो 8 दिन ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन काम ये उतना ही कर रहे थे जितने 150 वर्कर कर रहे थे। इसका मतलब ये भी उतने ही वर्कर हैं जितने 150 एक्स वर्कर्स थे, ठीक है। यानी देयरफॉर ये सेकंड इक्वेशन है, ये भी उतनी मैन पावर है जितनी यहाँ थी। यहाँ क्या था, रोज़ 150 आते थे, यहाँ कम आ रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक आ गए, यहाँ कम दिन एक्स दिन तक ही आ रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है वो टोटल मैन पावर जो है उसमें वो सेम है, इसलिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये भी उतने ही वर्कर हैं, बस ये एक्स दिन तक आते थे तो ये 8 दिन ज़्यादा तक आए, इसलिए थोड़े कम हैं, कम आते थे, लेकिन टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो वही निकलेगा। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। (150 plus 16, 166 minus 136, 166 minus 136 is 30, 2 को कॉमन लिया, now we need to find the factors of 544 which gives 15 when we subtract them. Such factors are 32 and 17. अब ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, अब 11th में हो तो इसलिए अब ये चीज़ें तो आप खुद ही सोचना कि कैसे हुआ होगा। So if x plus 32 is 0 then x is minus 32, which is not possible क्योंकि number of days can never be negative. So if x minus 17 is 0 then x is equals to 17. इसका मतलब 17 डेज में काम दिया था कंप्लीट करने को, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि अब कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो 8 दिन और लगे, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, जो प्लान किया था उसने 70 डेज़ में, लेकिन 8 दिन ज़्यादा लगे क्योंकि रोज़ वर्कर कम आने लग गए। तो अब 25 डेज़ में वो काम होगा जो पहले 17 डेज़ में हो जाता।